Hello. So let's continue with thermal properties of matter. We are doing the questions from NCERT. So let's continue. I think the last question हमने solve किया था. That was कौन सा question था? Can you just have a look at this? The previous yesterday's question that we solved. The last question that I solved. कौन सा question था ये? That was question number 11. चलिए, so आगे हम बढ़ते हैं question number 11 से आगे. We proceed further. Question number 11. चलिए, तो आई होप माई वॉइस इज क्लियर टू ऑल. मेरी आवाज़ आ रही है सबको. तो अभी हम आगे बढ़ते हैं. वेल, क्वेश्चन नंबर 12. गो फॉर क्वेश्चन नंबर 12. दीज आर द ऑप्शंस. लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्या दिया है यहाँ पे? द कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड इज gamma. The coefficient of volume expansion of a liquid is gamma. The fractional change in its density for a delta T rise in the temperature is. Fractional change is. So मैं यहाँ पर gamma के लिए फॉर्मूला लिखना चाहूँगा. राइट हियर द फॉर्मूला फॉर gamma. तो gamma इज इक्वल टू क्या होता है? Gamma is equal to change in the length. It is change in the volume actually. So it is delta V upon original volume per unit change in the temperature. This is the formula. अगर आपको ये फॉर्मूला याद होगा, मैंने प्रीवियस लेक्चर में ये फॉर्मूला आपको बताया था. देखिए यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि अल्फा, बीटा और गामा, इसके जो कनेक्टिंग वाले फॉर्मूले हैं वो सब मैंने आपको एक्सप्लेन करे थे. उसके बारे में हम बात करें. देखिए यहाँ पे हमने देखा था अल्फा, बीटा एंड गामा. गामा इज गिवन बाय दिस. ये था गामा का फॉर्मूला. सो दिस इज चेंज इन द वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम अपॉन चेंज इन द टेम्परेचर. तो यही चीज मैंने यहाँ पे दी है आपको. So they say the coefficient of volume expansion is gamma, the fractional change in its density for delta T rise in the temperature. So fractional change मतलब क्या होगा जी यहाँ पे? Fractional change मतलब ये होगा. देखिए, this is called as the fractional change, that is delta V upon V. This is called as fractional change. So delta V upon V is equal to gamma into delta T, and that's the answer, gamma into delta T. So A is the answer there. So just formula based question था ये, very easy. I'll go for the next question now. Question number 13. अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 13 ये रहा. क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं क्या दिया है जी यहाँ पे. दे से द rectangular block a rectangular block is heated from 0 degree Celsius to 100 degree Celsius. The percentage increase in its length is 0.2%. How will you write this? This is written as delta L upon L is equal to 2 upon 100. 0.2 upon 100. 0.2%. Okay. The percentage increase in its volume. So delta V upon V into 100 is equal to कितना? Percentage increase in the volume. Now we know that volume is equal to L cube. We know this volume is equal to L cube. और so यहाँ पर अगर मैं इसका डिफरेंशियल लिखूँ, what will be the differential for this? Yes, इसका अगर डिफरेंशियल लिखेंगे हम लोग, क्या बनेगा वो? डेल्टा टी. देखिए ऐसा है, या तो फिर मैं ये वाला फॉर्मूला ले लूंगा. द कनेक्टिंग फॉर्मूला बिटवीन द अल्फा, बीटा एंड गामा वैल्यूज. इसका एक फॉर्मूला है, हमने जो देखा था. अल्फा इज इक्वल टू गामा अपॉन 3. अल्फा इज इक्वल टू गामा अपॉन 3 और 3 अल्फा इज इक्वल टू गामा. अल्फा क्या होगा? अल्फा इज द कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन. इट इज डेल्टा एल अपॉन एल into delta t.
and gamma is equal to volumetric coefficient of volumetric expansion, it is delta v upon v into delta t. अब डेल्टा टी दोनों केसेस में सेम है, तो मैं यहाँ पर ये डेल्टा टी कैंसिल कर दूंगा. नाउ डेल्टा एल अपॉन एल is equal to 3 into 0.2 upon 100 is equal to delta v upon v. So what is the percentage increase in the volume? Is 0.6. Percentage increase in volume is equal to 0.6%. 0.6%, and that's the answer. So A is the answer there. Is this clear to you all? A is the answer there. Any doubts about that? Okay. अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. The next question is 15 question. 15 क्वेश्चन. अब देखिए 15 वाला जो क्वेश्चन है वो हम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे यहाँ पे. डायरेक्ट मतलब ये है अल्फा बीटा गामा आर द कोएफिशिएंट्स ऑफ लीनियर सुपरफिशियल एंड वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन. तो इसके बारे में आप क्या बोलोगे? अल्फा बीटा गामा. सो वी नो दैट अल्फा बीटा गामा बाय 1 बाय 2 एंड बाय 3. सो यहाँ से अपने को क्या फॉर्मूला? बीटा अपॉन अल्फा इज 2:1, तो ये गलत है. बीटा अपॉन गामा इज 2/3, ये सही है. गामा अपॉन अल्फा इज 3:1, ये भी गलत है. एंड बीटा अपॉन अल्फा इज 2, दिस इज 2. गामा अपॉन बीटा इज 3/2, तो ये भी सेम नहीं है, ये भी गलत नहीं है, ये भी गलत है. सो बी इज द आंसर देयर. आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल. तो ये तो मैंने डायरेक्ट फॉर्मूले के हिसाब से सॉल्व किया है. देन आई विल गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17. अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 17. दिस इज क्वेश्चन नंबर 17. अच्छा, बाय द वे मैं आपको एक चीज बता दूं कि मैं लेक्चर अभी ले रहा हूँ ऑनलाइन. इसमें अगर कोई एंटर हो जाता है तो आपको शायद पता चलता होगा ना, तो उसको एडमिट करने के लिए मुझे कभी कभी मेरे दूसरे स्क्रीन पर ध्यान नहीं रहता है, तो प्लीज डू टेल मी कि कोई आया है, तो आप अपने आप को अनम्यूट करके बता दीजिएगा कि सर समबडी इज देयर एट, उसको अलाउ कर दीजिएगा. आवाज सुनाई दी मेरी? डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई सेड? आपको नोटिफिकेशन आता है क्या इफ अ न्यू मेंबर इज ट्राइंग टू एंटर? डू यू ऑल गेट द नोटिफिकेशन? अगर मिलता है तो मुझे आप बता दीजिएगा, कभी कभी मेरा ध्यान नहीं रहता है यहाँ पे. चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 17. क्वेश्चन नंबर 17. यप, क्या दिया है यहाँ पे? द वॉल्यूम ऑफ मेटल क्यूब इंक्रीजेस बाय 0.24%. चलिए ठीक है, तो मतलब इसका मतलब है डेल्टा वी अपॉन वी इंटू 100 इज इक्वल टू प्लस 0.24%. इंक्रीज होता है ना, इसके लिए प्लस है, इंक्रीज दिया. व्हेन इट्स टेम्परेचर इज रेज्ड बाय, मतलब डेल्टा टी इज इक्वल टू 40 डिग्री सेल्सियस. तो कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन उन्होंने अल्फा पूछा है. दे आर टॉकिंग अबाउट वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, सो आई वुड से दैट गामा इज इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन वी इंटू डेल्टा टी. बट गामा, because alpha is equal to gamma upon 3, so gamma is equal to 3 alpha is equal to delta v upon v. Delta v upon v is 0.24 upon 100 and delta t is 40. तो ये 3 8 जा, तो ये बनेगा 8 into 10 raised to minus 2 and this will become 4 into 10 raised to 3. So this will become 2 into 10 raised to minus 5 per degree Celsius. 2 into 10 raised to minus 5. So what is the answer here? A is the answer. Is this clear to you all? समझ में आ गई बात? ये बहुत इजी क्वेश्चन है, फॉर्मूला सब्स्टिट्यूशन आंसर टाइप के. ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं. सो क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 18.
ये रहा क्वेश्चन नंबर 18. फाइंड द स्ट्रेस डेवलप्ड इनसाइड अ टूथ कैविटी. बहुत बढ़िया. टूथ कैविटी filled with the copper when hot tea at temperature 57 degrees Celsius is drunk. Take temperature of tooth. तो यहाँ से मुझे मिलेगा डिफरेंस ऑफ बोथ दिस टेम्परेचर्स, मतलब डेल्टा टी. डेल्टा टी इज इक्वल टू 20 डिग्री सेल्सियस. ओके, अल्फा इज गिवन टू अस एंड द बल्क मॉड्यूलस ऑफ कॉपर. बल्क मॉड्यूलस मतलब के. बल्क मॉड्यूलस ऑफ कॉपर इज के. इसका फॉर्मूला होता है के बल्क बल्क वॉल्यूम स्ट्रेस अपन वॉल्यूम स्ट्रेन. वॉल्यूम स्ट्रेस मतलब क्या होता है, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा वी अपॉन वी. ये दिया हुआ है. ठीक है. फाइंड द स्ट्रेस डेवलप्ड इनसाइड द टूथ कैविटी. स्ट्रेस डेवलप मतलब वो बल्क स्ट्रेस होता है. बल्क स्ट्रेस मतलब प्रेशर, चेंज इन द प्रेशर. सो ये रहा बल्क स्ट्रेस. बल्क स्ट्रेस इज दिस विच इज ऑल्सो गिवन बाय डेल्टा पी. तो यही अपने को पूछा गया है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. के इज नोन टू मी एंड डेल्टा वी अपॉन वी मुझे फाइंड आउट करना पड़ेगा. तो ये मुझे फाइंड आउट करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ थर्मल प्रॉपर्टीज. थर्मल प्रॉपर्टीज मतलब गामा इज इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन वी इंटू डेल्टा टी. ये है गामा. शायद उन्होंने गामा दिया होगा, नहीं उन्होंने अल्फा दिया है. बट अल्फा इज इक्वल टू गामा अपॉन 3. सो गामा इज इक्वल टू 3 टाइम्स अल्फा. ऐसा हो जाएगा. बराबर है क्या? इजंट इट? बट यहाँ पे वॉल्यूम 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 के लिए तो गामा ही होगा ना. यप, यस. तो चलिए मैं इसमें सब्स्टिट्यूट करूंगा. गामा इज इक्वल टू 3 टाइम्स अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन वी और डेल्टा टी इधर चला जाएगा. सो इनटू डेल्टा टी मतलब डेल्टा वी अपॉन वी is equal to 3 into alpha is 1.7 into 10 raised to minus 5 and delta t is 20. Now this is delta v upon v. और bulk stress क्या होगा जी? bulk stress which is equal to delta p that is equal to यहाँ से मुझे मिलेगा k into delta v upon v. तो मैंने ये कैलकुलेशन नहीं किया क्योंकि ये मेरा फाइनल आंसर नहीं है. आई विल सब्स्टिट्यूट दिस डेल्टा वी अपॉन वी ओवर हियर. के का वैल्यू इज गिवन टू बी बल्क स्ट्रेस इज 140 into 10 raised to 9 into delta v upon v 3 into 1.7 into 20 into 10 raised to minus 5. चलिए कुल मिलाकर क्या हो जाता है देखते हैं. अभी इसमें गिव मी देखिए ये हो जाएगा 60 और ये जो है इसका हो जाएगा 14 साथी 98 9 14 9 24 23 23 इंटू 10 का पावर 4 हो जाएगा. नाउ दैट इज इक्वल टू एक जीरो इधर चला जाएगा 6 से मल्टीप्लाई कीजिएगा. दिस इज 10 रेज़ टू 5 साई 8 8 पे 4 साई 3 8 4 22 2 साई 3 12 2 14. तो शिफ्ट दिस डेसिमल यहाँ से इधर करेंगे तो ये बन जाएगा 1.428 इंटू 10 रेज़ टू 7 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. तो ये बनेगा 10 रेज़ टू 8. अरे यार 10 का पावर का गड़बड़ दोबारा हो गया. 140 ना. ओहो यहाँ पे मुझे लिखना चाहिए था. हाँ ये डेसिमल नहीं चाहिए था क्योंकि ये जीरो आएगा ना. तो 10 रेज़ टू 5 कर दो यहाँ पे. 5 मतलब 4 प्लस 1 होगा ऑफकोर्स. 4 प्लस 1. दिस इज 5 प्लस 1. सॉरी 5. हाँ 5 प्लस 1 सही है. 5 प्लस 1 एंड दिस इज 7 प्लस 1. सो कुल मिलाकर 1.428 इंटू 10 का पावर 8 10 रेज़ टू 8 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. So this is the answer. That is option A is the answer there. Is this clear to you all? अच्छा क्वेश्चन था ये. This was a good question. I'll go for the next question. अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं.
क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23। चलिए बढ़ते आगे। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। या क्या दिया है यहाँ पे? 10 kilowatt drilling machine is used, 10 kilowatt its power. 23rd question, power is given as 10 kilowatt, मतलब 10 into 10 raised to 3 watt is used to drill a bore in a small aluminium block of mass. ये है mass of the block, ठीक है। let's say वो कुछ ब्लॉक इस प्रकार का है, इस ब्लॉक के अंदर होल ड्रिल किया जा रहा है। the mass of this block is 8 kg, ठीक है। फाइंड द राइज इन द टेम्परेचर ऑफ द ब्लॉक, मतलब डेल्टा टी पूछा है, इन द टाइम ड्यूरेशन ऑफ 2.5 minutes, 2.5 minutes, so this is 2.5 into 60 seconds. Assuming 50% power is used, 50% of power is used up in heating the machine itself or lost to the surroundings. 50% power is used in heating the machine itself or lost to the aluminium. So this is an aluminium block. इस एल्यूमिनियम ब्लॉक के बारे में, ये इसमें से सिर्फ 50% पावर जो है उसको यूज किया जाएगा, ओनली 50% पावर इज यूज्ड हियर। स्पेसिफिक हीट ऑफ एल्यूमिनियम इज 0.91 जूल पर ग्राम पर सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस, ऐसा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर पावर कितनी यूज हो रही है, बिकॉज what is the total energy available, because power is equal to energy upon time, that is or heat upon time। तो ये अवेलेबल कितनी है एनर्जी अवेलेबल, एनर्जी अवेलेबल, एनर्जी अवेलेबल I'll call this as E is equal to power into time। so this power is 10 raised to 4 watt होता है, watt का ही मतलब होता है जूल्स पर सेकेंड, याद रखिए। और मुझे उसको टाइम t से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दैट इज इक्वल टू 2.5 मतलब 25 into 6। now this is in seconds, so joules per second into second is gone। so what is the power available? 150, so it will be 15 into 10 raised to 5 joule, this is the power available। लेकिन उसमें से सिर्फ 50% पावर यूज हो चुकी है। आपको पता है एफिशिएंसी, एफिशिएंसी इज इक्वल टू एनर्जी आउटपुट अपॉन एनर्जी इनपुट डिवाइडेड बाय एनर्जी इनपुट, बराबर है क्या? नो दैट इज, दिस इज 50%, 50% मतलब 50 अपॉन 100 इज इक्वल टू एनर्जी आउटपुट। तो एनर्जी which is available for heating purpose is only half of the total energy available, energy available। are you understanding what I'm saying there? ठीक है। therefore this will give me what is the energy available for heating purpose, energy available for heating purpose or energy which is available for heating the block is equal to half of energy available, मतलब ये 15 into 10 raised to 5। तो इसमें से सिर्फ 7.5 into 10 raised to 5 जूल ऑफ एनर्जी, 10 raised to 5 जूल ऑफ एनर्जी इज अवेलेबल फॉर द हीटिंग पर्पस, हीटिंग पर्पस के लिए सिर्फ इतना। एंड वॉट एवर दिस एनर्जी अवेलेबल वही है हीट, एंड दैट इज इक्वल m इंटू एस इंटू डेल्टा टी, एम एस इंटू डेल्टा टी, आपको ये तो पता ही होगा, एम एस डेल्टा टी। नाउ इसका मास मुझे पता है, स्पेसिफिक हीट भी पता है, तो मुझे सिर्फ राइज इन द टेम्परेचर पूछा गया है। सो दिस विल गिव मी डेल्टा टी इज इक्वल टू क्या होगा बताइए, डेल्टा टी
इज इक्वल टू 7.5 इंटू 10⁵ डिवाइडेड बाय मास। मास कितना है यहाँ पे दिया हुआ 8 kg एंड स्पेसिफिक हीट इज गिवन टू बी 0.91 ठीक है। एनर्जी बैलेंस आप देख सकते हैं, दिस इज मेजर्ड इन जूल, मास इज मेजर्ड इन केजी, स्पेसिफिक हीट का है जूल पर केजी, नहीं लेकिन यहाँ पर शायद जूल पर ग्राम दिया है ना, यहाँ पे दे हैव गिवन दिस जूल पर ग्राम, तो ग्राम में अगर है तो मुझे मास को ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सो दिस विल बिकम 8000 ग्राम, याद रखिए प्लीज, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे इसको करेक्ट करना पड़ेगा, देखिए गौर से, सी इसके यूनिट्स की अगर मैं लिखूँ यहाँ पे, यूनिट्स को अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ तो क्या बन जाए, देखिए दिस इज मेजर्ड इन जूल, this is measured in kg, this S specific heat is measured in joule per gram degree Celsius and delta T is degree Celsius। तो ये तो ठीक है, लेकिन ये kg मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा ग्राम में, so this has to be written as kg has to be written in ग्राम, ताकि वो ग्राम ग्राम कैंसिल हो जाए, जूल इज इक्वल टू जूल ऐसा हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि मुझे इसको 8000 लिखना पड़ेगा। चलिए, therefore what is delta T, this delta T is equal to 7.5 into 10⁵ divided by mass is 800 gram and specific heat is 0.91 ना, 0.91। चलिए सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको अभी, सो दैट विल बिकम, इसके 2 डिजिट ट्रांसफर कीजिएगा, 750 बनेगा, ये 800 बनेगा और इसके 2 डिजिट ट्रांसफर कीजिएगा तो 91 बनेगा इंटू 10⁵, तो इसमें से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा। वेल अब देखिए ये जीरो गया है, यहाँ से भी जीरो गया है, तो दिस इज लाइक 25 5, दिस इज 16, नहीं ज़रूरत नहीं थी इसको, 750 और 800 वैसे रहने दीजिए, दिस इज 750 एंड दिस इज 800, एक जीरो गया, 8 से डायरेक्ट ही कर लेते हैं मेरे ख्याल से, 13 7 था मेरी 65, 10 बचा मेरी 9 बचा 57, ओके, फिर ये बनेगा 5.77 अपॉन 8 इंटू 7, 10⁻1 ऊपर जाके -1, so this is 10⁻4। चलिए अब 7 से डिवाइड कीजिएगा तो मतलब 7 1 जा 7 0 8 जा 1 3 3 28, ओके, और ये 8 1 जा 0 3 जा, अब ये आएगा 1.03 इंटू 10⁻3, मतलब ओहो कितना आएगा ये, दिस इज ऑलमोस्ट 1.03 नहीं, पॉइंट 10⁻, 800 kg नहीं रे बाबा, 8000 होना चाहिए। ओहो यहाँ पर और एक जीरो होना चाहिए, देखो हर बार एक डेसिमल मिस्टेक होता जा रहा है, अभी और एक जीरो आएगा, यहाँ पर और एक जीरो आएगा, तो इसलिए यहाँ पर भी और एक जीरो आएगा, सो दिस विल बिकम लाइक 1.03 into 10⁻2 that is equal to 103 degree Celsius, that's the answer, 103 degree Celsius। Please check whether this is clear to you, 103 B is the answer there, is this okay? Hello, B is the answer there, any doubts about that? No, sir. Hello, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, let's go for the next question। I hope you are all understanding what is being taught, समझ में आ रहा है? That was question number 18, 18 नहीं, कौन सा था ये, 23rd। I'll go for question number 24th now, question number 24th।
A person 24. A person weighing 50 kg. A person weighing 50 kg is takes in 1500 kilocalorie diet per day. Okay, so I'll say this is the delta Q. This is the energy or heat which is available. 1500 kilocalorie मतलब 1.5 into 10 raised to 6 calorie. ठीक है. If this energy were to be used in heating the body of a person without any losses, मतलब ये पूरा का पूरा energy is used for heating the body without any losses. ठीक है. Then the rise in its temperature is, so whatever this is equal to delta Q is equal to m specific heat into delta T. अब ऐसा यूनिट चेक कर लीजिएगा. This is measured in calorie. Mass is given in kg. Specific heat is mentioned here. देखिए calorie per gram per डिग्री सेल्सियस. और डेल्टा टी जो होगा राइज इन टेम्परेचर वो तो डिग्री सेल्सियस में होगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा. तो मुझे कैलोरी कैलोरी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन केजी को मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा ग्राम में. तो लेट मी जस्ट सब्स्टिट्यूट हियर एवरीथिंग. दिस विल गिव मी 1.5 into 10 raised to 6 is equal to mass is 50 kg. 50 kg is 50 into 10 raised to 3 gram into this is 0.83 into delta t. अब देखिए डेल्टा टी इज गिवन बाय, ये हो जाएगा 10 टू 314, 4 गया तो 2 बचा, मतलब दिस इज 150. दिस इज 150 डिवाइडेड बाय 5 into 0.83 डिनोमिनेटर. दिस इज 5 3 by 15. ओके, नाउ दैट इज इक्वल टू 3 1 2 3 3000 अपॉन 83. 83 को अभी हम कैसे करेंगे? I'll approximate this 83 or 3 after. No, ये इसको मैं अप्रोक्सीमेट करूंगा 84 को. Why 84? Because it is divisible by 3. तो 3 1 जा, 3 2 जा 6, 3 8 जा. भाई यार ये तो और भयंकर हो गया. चलो कोई नहीं, 1000 अपॉन 28. 7 4 जा, तो 4 7 जा, इसका फोर्थ मतलब 1500 250. और अब मैं 250 को डिवाइड करूंगा इससे, सो दिस बिकम 7. क्या होगा ये? 21 4 40 35 35 35 50 7 7 35.6, which is the nearest answer here. The nearest answer is D, that is 35.7. So D is the answer there. Is this clear to all? 24th. Any doubts about this? Okay, समझ में आ गया सबको? ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. ठीक है, एनी डाउट सो फार? नाउ देयर आर फ्यू क्वेश्चंस बेस्ड ऑन कैलोरीमेट्री. कैलोरीमेट्री जो आप लोगों ने मेरे ख्याल से 10th स्टैंडर्ड में देखा होगा, कुछ नहीं देखा तो अभी कोई दिक्कत नहीं है, याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो अब देख लीजिएगा. एनर्जी बैलेंस इक्वेशन लिखना होता है कैलोरीमेट्री में, बहुत सिंपल रहता है. चलिए शुरू करते हैं कैलोरीमेट्री. लेट्स बिगिन विद दिस नाउ. क्वेश्चन नंबर 25 देखिए क्या दिया है यहाँ पे.
10 gram of ice, 10 gram of ice at 0 degree Celsius. Ice. 10 gram of ice, the mass of the ice, 10 gram at 0 degree Celsius is mixed with 100 gram of water. क्या हो गया इसको? चलिए 100 gram of water at 50 degree Celsius. The temperature of water is 50 degree Celsius. In the calorimeter. Calorimeter, the final temperature, calorimeter है ऐसा डिवाइस है जहां से आपको heat loss is not taking place. Okay, the final temperature of the mixture. ये जो मिक्सचर तैयार होगा यहाँ पे भाई, well this is the mixture. ये जो मिक्सचर है इसका मास कितना हो जाएगा देखो, 100 ग्राम, so total mass, this is m1 और ये m2, total mass is going to be 110 gram, isn't it? वो तो सेम रहेगा, isn't it? Mass of the heat gained by the ice. Specific heat of water is given, latent heat of fusion of ice is also given here. Specific heat of water and पहले क्या होगा, ये जो ice है this will get converted, so let me talk about the water ice. Specific heat of water is given here, I call this as SW, specific heat of water. वो है 1 calorie per gram per degree Celsius, and latent heat of fusion of the ice, latent heat of fusion of the ice, I'll call this as LF ice, LF ice is equal to 80 calorie per gram. पहले उल्टा लिखा है, ठीक है, 80 calorie per gram. ऐसा दिया है. Now whatever amount of whatever let T be the final temperature of the mixture, final temperature of the mixture is T. तो मुझे पहले तो, क्योंकि ये टेम्परेचर ऑफ वाटर इज, आइस इज एट 0 डिग्री सेल्सियस, तो पहले तो आइस विल, व्हाट विल हैपन, आइस विल लूज इट्स मतलब एयर हीट, देयर विल बी हीट, so the water will lose the heat and ice will gain that heat and it will get converted into water. So we'll say here heat gained by the ice, heat gained by ice, क्योंकि ये पहले ice will get converted into water, that is equal to mass of ice into latent heat of ice, latent heat of ice, ठीक है, मतलब whatever it is. तो ये तो हो गया ice gets converted into water, प्लस अब यही जो वाटर 0 डिग्री सेल्सियस का होगा वो T डिग्री सेल्सियस तक जाएगा, सो प्लस हीट गेन्ड बाय आइस टू वाटर, मतलब यहाँ पर वो मुझे और एक हीट ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि ये हीट जो है ये यहाँ से वो 0 डिग्री सेल्सियस का वाटर बन गया, वो यहाँ से वो आगे चलेगा, सो व्हाट इज द प्लस इज इक्वल टू मास ऑफ दिस आइस इनटू स्पेसिफिक हीट ऑफ द वाटर, क्योंकि अब वो वाटर बन चुका है,
इनटू द चेंज इन द टेम्परेचर, मतलब इट विल बी टी माइनस जीरो, ऐसा बनेगा वो। इज दिस ओके? ठीक है। सो वट एवर दिस इज, यहाँ पर हीट गेन्ड हो जाएगा, दिस इज गोइंग टू गेन द हीट। और ये पानी जो 100 डिग्री सेल्सियस पर है, दिस इज गोइंग टू lose the heat. So I'll say here the heat lost. I'll say here. Oh, एक second. अब यहाँ पर मुझे लिखना पड़ेगा heat lost by water. Heat lost by water. That is equal to mass of this water into specific heat of water into temperature. अब उसका temperature 50 से T तक drop हो जाएगा. So heat gained is equal to heat loss. So both these heats are same. I just have to equate both these heats here. ये दोनों heats मुझे equate करने पड़ेंगे यहाँ पे, समझे क्या? ये दोनों heats मुझे यहाँ पर equate करने पड़ेंगे. तो let us equate both these now. So what is the mass of the ice here? I just थोड़ा सा इसको छोटा बना दूँ मैं. Yeah, please check here now the calculations. We have to substitute here. तो ये दोनों चीजें सेम ही रहेगी. चलिए सब्स्टिट्यूट करते हैं. मास ऑफ द आइस इज 10 ग्राम, लेटेंट हीट है उसका 80, दैट इज द फर्स्ट पार्ट, प्लस मास ऑफ द आइस इज 10, स्पेसिफिक हीट है उसका 1 into temperature is T is equal to mass of the water here is 100 gram of water is there which is having specific heat 1 and this is 50 minus T. अब टोटल कितना हो गया देखिए यहाँ पे, this will become 800 plus 10T is equal to, this is 5000 minus 100T. अब देखिए 100T इधर आके 110T हो जाएगा, 5000 में से 800 गया तो 4200 हो जाएगा. So the temperature is 4200 upon 110, a गया. So this is 11 1 जा 11 3 जा 33, 33 और 9 90 हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा 8 जा 88, 2 बचा 21 जा, तो it will be 38.1 डिग्री सेल्सियस. ये होगा वो टेम्परेचर 38.1. तो 38.1 is this answer. D is the correct answer there. ये कैलोरीमेट्री के ऊपर क्वेश्चन है, ये आप लोगों को 10th में भी था, बट अगर याद है अच्छी बात है, नहीं है तो भी आपको उसको. एनी डाउट्स अबाउट दिस, प्लीज टेल मी. हेलो 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 हेलो. अरे No, क्वेश्चन sir. समझ में आ गया? हो सर डिड यू समझ लो. अंडरस्टैंड व्हाट आई एक्सप्लेन? एवरीबॉडी, हाउ मेनी आर देयर? 4 Yes, 5 6 sir. लोग जो है. ओके गुड. चलिए Yes, sir. अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन. हाँ चलिए, क्या दिया है यहाँ पे देखिए, सेम टाइप का क्वेश्चन होगा. when 1.5 kg of ice, तो देखिए वहां पर आइस है, this ice gets converted into, this is the ice, mass of the ice is 1.5 kg, is mixed and this is at 0 degree celsius. ठीक है. it is mixed with water at 70 degree celsius in the container. There is a container which contains the water at 70 degree celsius in the container. The resulting temperature is 5 degree celsius. 5 डिग्री सेल्सियस मतलब वो पानी बन चुका है, मिक्सचर, resulting mixture, and this mixture is at what temperature? 5 degree celsius.
द हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ द आइस इज, तो ये है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस, ये आपको पूछा गया है। द स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज 4186 जूल पर केजी केल्विन, ये जूल में दिया है। देखिए देखिए हीट जो होता है, द हीट कैन बी मेजर्ड इन कैलोरी आल्सो, या फिर इट कैन बी मेजर्ड इन जूल आल्सो। यहाँ पे दे आर ट्रीटिंग एवरीथिंग इन जूल, सो लेट्स सॉल्व दिस नाउ। कैसे करेंगे सॉल्व बताइए। ये क्या हो जाएगा इसका, दिस इज गोइंग टू, अगर मैं यहाँ पे हीट की बात करूँ, if I talk about heat here, so what's going to happen here, you see that this is going to lose the heat, ये हीट लूज करेगा, जो कि इसको इसको मिलेगा वो हीट। सो हीट लॉस्ट बाय आइस इज इक्वल टू हीट गेन बाय वाटर, isn't it? और फाइनल टेम्परेचर ये रहा उसका, ठीक है। नाउ लेट अस राइट डाउन द टोटल हीट लॉस्ट। यहाँ पर प्रोसेस क्या हो जाएगा, देखिए दिस इज, एक मिनट, मैंने उल्टा बता दिया आपको शायद। दिस इज गोइंग टू लूज द हीट, समझे क्या? दिस इज गोइंग टू लूज द हीट एंड दिस इज गोइंग टू एक्सेप्ट द हीट, क्योंकि यहाँ से हीट निकलेगा और इधर चला जाएगा। सो व्हाट इज द हीट लॉस्ट, यहाँ से हीट लॉस्ट होगा एंड दिस इज हीट गेन्ड, ठीक है। सो अगर मैं इसके लिए लिखता हूँ हीट लॉस्ट, heat lost is equal to mass of the water, specific heat of the water into temperature difference. Now what is the mass of this water? ये है mass of the water, कितना है भाई, 2 kg of water, mass of the water is 2 kg। चलिए, so this will be 2 kg, और ये मैं केजी में रखूंगा क्योंकि यहाँ पर जूल्स पर केजी दिया है। ये देख के आपको डिसाइड करना है कि ग्राम में करना है या किलोग्राम में रखना है उसको। into specific heat is 4186 and delta T, what is the difference of the temperature? 70 से वो 5 डिग्री का बनेगा, मतलब it is 65 का difference है। There is a difference of 65 degree. This is the heat lost. And if I write down the heat gained, heat gain, so it is taking place in two steps. पहला step की ice will get converted into water. So this is mass of the ice into latent heat of the fusion of the ice, plus whatever this ice was there, it got converted into water, लेकिन mass उसका वही रहेगा, into specific heat of water into delta T। अब देखिए mass of the ice तो पता है मुझे कितना है भाई, 1.5, this is 1.5 into LFI plus 1.5 into specific heat is 4.6, okay, into delta T। अब ये 0 डिग्री सेल्सियस से 5 तक जाएगा, so this is 5 is there, so this will give me, now these two things are same, ये जो है ये total heat gain is equal to total heat lost। Let me just equate both these, what am I going to get there? This will give me 1.5 into LFI plus 1.5 into 4 3 4 4 5 9 ओके इज इक्वल टू, ये कितना बनेगा भाई, 2 इंटू, I will take this as 4200, 4200, so this will be 2 into 4200, यार ये मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, वेरी बैड, 65 into 4 plus ये बचे 372 5460 5460, और इसे मैं अप्रोक्सीमेट करूंगा 21000, तो ये बन जाएगा, दिस विल बिकम 5460 into 00,
क्योंकि ये मैंने 42 लिया था। अच्छा, यहाँ पर बन जाएगा 1 2 3, 8.5 गया तो ये ऐसा हो जाएगा 15 × 15 5 15 31 फिर 500। तो ये बन जाएगा 546,000 माइनस 31,500। तो कुल मिलाकर क्या बन जाएगा ये 1 2 ओके। नाउ LFI is equal to 514500 अपॉन 1.5। तो ऐसा कुछ इसका आंसर बनेगा इंटू 10⁻²। सो मैं इसको लिखूंगा 10 का पावर हो जाएगा 1 और ये 3 एंड दिस इज 5145 अपॉन 15। तो कुल मिलाकर हो जाएगा 15 × 15 15 3 45 64 15 चौक 60 65 45 15 3 45 into 10⁻³ so this will become 3.43 into 10⁻⁵. Now this is to be measured in joule per kg, joules per kg. So this is 3.43 10⁻3.43 10⁵, 3.43 10⁵ joules per kg. So C is the answer. Please check whether this is clear to you all. क्या आपको ये समझ में आ गया? Hello, did you all understand that? Hello, did you all understand that? Hello, did you all understand that? Can you Yes, hear sir. me? Okay. Question number 27. समझ में आ रहा है ये? These types of questions you have already done earlier. 10वीं में किए हो आप इस टाइप के questions. Question number 27. The temperature 27. Again same type. Calorimetry का ही है type है. आपको डायग्राम ड्रॉ करके यहाँ पे आपको हीट लॉस्ट इज इक्वल टू हीट गेन्ड ऐसा इक्वेशन लिखना है, बस बाकी सिंपल लॉजिक अप्लाई करना है। चलिए शुरू करते हैं अगला क्वेश्चन। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, द टेम्परेचर ऑफ इक्वल masses of three different liquids, equal masses, the mass is same m, of three liquids A, B and C, the masses are same, are 12 degree Celsius, 19 degree Celsius and 28 degree Celsius respectively. The temperature when A and B are mixed at A, the temperatures are equal respectively. Okay, A and B is mixed. The temperature when A and B is mixed at 16 degrees Celsius. A and B, the temperature when A and B mixed is 16 degrees Celsius. ये जो resulting temperature है वो 16 degrees Celsius है. When B and C is mixed, अगर B और C को मिक्स किया जाता है तो उसका टेम्परेचर आता है 23 डिग्री सेल्सियस. टेम्परेचर व्हेन A and C is mixed, तो उसका टेम्परेचर कितना है? क्वेश्चन समझ में आ गया आपको? हेलो हेलो हेलो. Now let me say their specific heats are, let their specific heats are given S1, S2 and S3 respectively. ठीक है? Then when A and B are mixed, let's take this one by one. I'll say A and B are mixed. First part, A plus B is mixed. ये जब होता है तो heat lost by B is equal to heat gained by A. बराबर है क्या? Heat lost by B is equal to gain by A. What is the heat lost by
नाउ लेट अस से उसका टेम्परेचर यहाँ पर है 16 डिग्री सेल्सियस. तो व्हाट इज द हीट लॉस्ट बाय बी? इट इज मास ऑफ बी इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ बी इंटू डेल्टा टी. टेम्परेचर 19 से वो 16 पे चला जा रहा है क्योंकि ये टेम्परेचर उन्होंने 16 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है. So this will become 19 minus 16. Heat gained by A. A कितना heat gain करेगा? So it will be mass of A into specific heat of A into उसका temperature 12 था वो 16 बन गया. So this is 16 minus 12 that is 4. तो क्या मिलेगा मुझे? ये M gets cancelled. So this is giving me S2 into 3 is equal to S1 into 4. ऐसा बन जाएगा. Isn't it? I'll call this as equation 1. Similarly, if I'll write the second part कि भाई जब B और C मिक्स किया जाता है 23 डिग्री सेल्सियस, B is mixed with C, the result is 23 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, तो अब देखते हैं यहाँ पर अगर B and C मिक्स किया जाएगा तो this is losing the heat and this is gaining the heat. Heat lost by C, heat lost by C because this is at the higher temperature is equal to heat gained by B, heat gain by B. और दोनों का रिजल्टिंग टेम्परेचर है 23. सो दिस इज m into specific heat of the third one divided by delta t. Delta t मतलब 28 minus 23, 28 minus 23 is equal to m into specific heat of B, S2, into delta t, the temperature difference, heat gained by B. तो 19 से बढ़कर वो 23 हो रहा है. So this will become 23 minus 19. Are you understanding that? ठीक है, तो अब ये क्या बन जाएगा देखिए, m gets cancelled. So this will give me S3 into 5 is equal to S2 into 4. This is equation number 2. अब मुझे यहाँ पे पता करना है कि भाई अगर ये इक्वेशन 1 जो है यहाँ से मुझे क्या मिलेगा देखिए, what is S1 is equal to S2 into 3 by 4 and S2 S2 अगर मैं इसको डिवाइड कर लूँ 3 by 4 and if I substitute there, इसमें अगर मैं S2 के लिए what is S2 is equal to S3 into 5 by 4. So S1 is equal to S2 के जगह पर S3 into 5 by 4 into 3 by 4. That means S1 is equal to S3 into 15 upon 16. 15 upon 16 ऐसा कुछ बन जाएगा. Is this clear to all? तो ये तो S1 S2 S3 हो गए. अब A and C is mixed. The third part we go for. A and C is mixed. A plus C. They are asking what is the temperature that you get there. I don't know the temperature. और A और C को अगर मैं चेक कर दूं यहाँ पे तो A is at lower temperature, C is at higher temperature. So heat lost by C is heat gained by A. Heat lost by C is equal to heat gained by A. ऐसा होगा. So this is M into specific heat of the third one divided by temperature difference. अब ये temperature लॉस होगा इसका तो ये इसका टेम्परेचर लोअर हो जाएगा ना, 28 से टी हो जाएगा. सो दिस बिकम 28 माइनस टी बिकॉज दिस इज एट 28 डिग्री सेल्सियस. तो ये लोअर होगा इसका टेम्परेचर और ये है 12 डिग्री सेल्सियस तो इसका टेम्परेचर हायर हो जाएगा. बराबर है क्या? सो दैट इज इक्वल टू m इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ द फर्स्ट वन इंटू 12 टी माइनस 12 रादर टी माइनस 12. तो वही मुझे कैलकुलेट करना है. So this is t minus 12. अब देखिए m gets cancelled. S1 के जगह पर मैं S3 into 15 upon 16 लिख सकता हूँ. So this is S3 28 minus t. S1 is S3 into 15 upon 16 into t minus 12.
अब हमें S3 gets cancelled here, so this will become 28 into 16 minus 16t is equal to 15t minus 15 into 12. 16 8 28 80 9 12 16 दूनी 32 34 32 32 448 माइनस 15t उधर जाके हो जाएगा और दूसरे को हम 15 दूनी 30 प्लस हो जाएगा ये 15 दूनी 15 दूनी 18 180 is equal to 31t. So 31t is equal to 8 potential 12 628. So t is equal to 628 upon 31. I'll approximate this to 628 upon 30. So this will become 3 दूने 6 0 3 8 24 4 40 no 3 9 27 9 So this is approximately 20.9. Approximately 20.9 actually. 20.9 मतलब C must be the answer here. Answer will be C. 20.9. The nearest answer is C. So it is 20.3. Is this clear to you all? C is the answer there. समझ में आ गई बात? Hello, 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 Yes, hello. sir. Are you all understanding that? समझे? Okay. कैलोरीमेट्री के ऊपर और एक क्वेश्चन है लेकिन वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे. I'll switch over to maths now. अभी मैं मैथ्स को स्विच ओवर कर रहा हूँ.